આઝાદ છું હું ફ્રી છું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે 2023 વર્ષ પહેલા મને છોડાવ્યો છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે 2023 વર્ષ પહેલા મારે તારું કિંમત ચૂકવી આજે હું ફ્રી છું મારું શરીર ઈસુ નાઝરીના નામમાં ફ્રી છે હું નિરોગી છું ઈસુ નાઝરીના નામમાં હું નિરોગી છું યેસુના નામમાં હું આનંદિત છું ઈસુ નાઝરીના નામમાં હું આનંદિત છું મારા દેવ હું આનંદિત પ્રભુમાં હું આનંદિત છું થેન્ક યુ હાલેલુયા હું કેવો છું આનંદિત છું કેટલા આનંદિત છે એકબીજાને પૂછો તો ખરેખર તમે આનંદિત છો ખરેખર આનંદિત છો સાચે રડનાર મોહ તો નથી ને દેખી લો તો કોઈનું રડતું મોહ છે કોઈનું નથી મને તો બધા બહુ દેખાય છે હાલેલુયા બધા ખુશ છો થેન્ક યુ હંમેશા યાદ રાખો દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં એક સમય આવે છે શું આવે છે સમય જેમ મેં કીધું મારા જીવનમાં એક સમય આવ્યો 2004 માં આજની તારીખે અને જ્યારે એ સમય આવ્યો ને મારો સમય 2000 થી ચાલુ થયેલો ક્યાંથી 2000 નહીં 1997 થી કહું તો ચાલશે 1997 થી સોરી ના 2000 થી 2001 કે 2000 ની અંદર સમય ચાલુ થયો કે જ્યારે આ જગ્યા પર મેં તમને કીધેલું ગયો કે આ જગ્યા પર સંગતિ ચાલુ થઈ હતી 4 ઘર છોડીને અને એક સેવક આવવા લાગ્યા અને સંગતિ કરતા હતા અહીંયા અને એ સેવક મારા જ્યાં જવાન હતા એ સમય અને આવે અને 4-5 જણ ભેગા કરે ત્યારે મકાન ખાલી હોય તેની અંદર લોકો સ્તુતિ આરાધના કરે વચન કરે સંડે સામની મીટિંગ ત્યારે ચલાવતા હતા અને ધીરે ધીરે 2001 ગયું 2 ગયું 3 ગયું અને 3 પછી 2000 જ્યારે 4 શરૂ થયું 4 ની ફેબ્રુઆરી 4 તારીખ જ્યારે આવી અને ત્યારે મારા ફ્રેન્ડ લોકો એની અંદર જતા હતા સંગતિની અંદર અને એમણે મને પણ કીધું કે ચલ હે હું ના જ તો હું કદી સંગતિમાં જાઉં 2 વર્ષ ગયા 3 વર્ષ ગયા અને 4 શરૂ થયું નતો જાણતો કે 4 માં શું થવાનું છે મેં બાબા જાણતો અને શરૂઆત થઈ બહુ શરૂઆત એમ કે કેમ ખરાબ શરૂઆત ગણો તો ચાલે કારણ કે જ્યારે હું એવું હતું કે ક્રિસમસ હોય ન્યુ યર હોય ત્યારે દરેક નામધારી ખ્રિસ્તી લોકો ચર્ચમાં જાય કેવા લોકો અને એમાં એક નામધારી ખ્રિસ્તી પણ હતો કે જે ચર્ચમાં જતો હતો ક્રિસમસે જવું ન્યુ યરે જવું ઈસ્ટરે જવું કેમ કે હું નામધારી હતો હું ખ્રિસ્તી નતો હું કેવો હતો નામ દઉં એક્સેપ્ટ કરું છું નામધારી હતો એટલે હું જતો કેમ કે આજે તમે મિત્રો નામધારી ખ્રિસ્તી લોકો તમને ચર્ચમાં મળશે કે જે લોકો કદી પણ પ્રભુની આજ્ઞાનું પાલન કરતા નથી પ્રભુ કોણ છે એનો પણ કદી શોધવા જતા એ નામધારી ખ્રિસ્તી લોકો જે ખાલી ચર્ચમાં જવું અને આવું કે જેનું પોતાનું નામ ચર્ચની અંદર રાખી લીધું કારણ કે काल फिर ऑफ થઈ ગયા कल मृत्यु पाए तो दफन होने के लिए उनको जगह मिल जाए उनके बच्चे बड़े हो जाए तो उनकी शादी हो जाए वो नामधारी ख्रिस्ती लोग वो कहते हैं और उसमें से एक मैं भी था मैं भी ऐसे जिया करता था मैं भी ऐसे जिया करता था और जब ये ऐसे जीता था तब परमेश्वर ने मुझे उसमें से बाहर निकाला और जब से बाहर निकाला तब से लेके आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि वो समय था मेरे लिए मेरे छुटकारे के लिए समय था किसके लिए छुटकारे के लिए वो हर एक बात से परमेश्वर मुझे छुड़ाना चाहता था हर एक बात से परमेश्वर मुझे छुड़ाना चाहता है वो मूर्ति पूजा से जैसे इस मसीह की मूर्ति बड़े मूर्ति के सामने झुकना उसमें से परमेश्वर मुझे छुड़ाया वो गलत रिवाजों में से परमेश्वर मुझे छुड़ाना चाहता था उसके लिए समय ने
नियुक्त किया गया था परमेश्वर ने, ऐसे नहीं था। एक समय जब वो समय आ चुका तब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, तब छुड़ाया। वो गलत संगति से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, वो मारपीट से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। वो 2004 की बात बताता हूँ आपको। और जब से परमेश्वर में आया, वो मारपीट करना, वो दादागिरी करना, वो लुच्चापन, वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया। लेकिन तब भी परमेश्वर जब मैं चल रहा था, तब भी शैतान तब भी हावी था, तब भी पाप में गिरा था। तो गलत देख जाना, गलत कर देना, गलत बोल देना, धीरे 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 क्या हुआ, परमेश्वर क्या करने गया, मुझे सूद करते गया, सूद करते गया, सूद करते गया। आज 20 साल हुए, 20 साल के अंदर पर इसलिए मैंने कहा बहुत सी गलतियां किया, लेकिन अब उस गलतियों को मैं नहीं करना चाहता। इसलिए अब मैं सीधा चलना चाहता हूँ। 20 साल मैंने जिया, परमेश्वर 20 साल संभाला, लेकिन परमेश्वर 20 साल इसके लिए संभाला कि अब कुछ नया कर, क्या करे, कुछ नया। आज मेरे अंकल की लड़की है, उनके बेटे का कॉमन है, और बाइबल कहता है कि छोटे बच्चे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर का शरीर क्या है, और जो भी उस क्रिया को करता है वो पाप करता है, श्रापित है। वो माँ बाप श्रापित है, वो बच्चे श्रापित है, क्योंकि माँ बाप उनको पाप करवाते हैं। बच्चों को तो मालूम, लेकिन माँ बाप पाप करवाते हैं। और जब मेरी बहन जो सगी बहन थी, मैं उसके बच्चे की उसमें नहीं गया, मेरी साली के वहां पे नहीं गया। और आज एक मेरी जो अर्जुन बहन है, जो मेरे अंकल की लड़की है, उसने मुझे पहले से कह दिया, उसने मुझे पहले से कहा कि मुझे डाउट है कि तू नहीं आएगा। उसने पहले बोले कि મને ખબર છે કે તું આવવાનો નથી, પણ તું આય કેમ કે તું મારો ભાઈ છે। वो मुझे कहते तू आ क्योंकि तू मेरा भाई है, लेकिन वो कहती है मैं डाउट है, मुझे 100% डाउट है कि तू नहीं आएगा, क्योंकि मैं गलत में साथ नहीं दे सकता हूँ। वो पाप कर रहे हैं, वो नर्क में जा रहे हैं, मैं उनको नर्क में जाते हुए नहीं देख सकता हूँ ना, मैं नहीं देख सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे अपने हैं। जब मैं पढ़ाई को नहीं देख सकता, मैं अपने को मैं कैसे देख सकता हूँ? तो मैं उनके साथ कैसे जाके खाना है, मुझे नहीं खाना है, मेरे घर पे मैं खाना बना के खा सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं वहां पे रोटी खाने, पूरी खाने की, सब्जी खाने में वहां पे जाऊं नहीं, मैं खा के भी पाप तो करूंगा ही ना, क्योंकि उनके साथ में भी मैंने तो क्या किया, सपोर्ट तो दिया मैंने। वहां पे नहीं गया तो खाने तो चला गया, तो पाप तो मैंने किया ही, क्योंकि खाना भी कौन सा था मालूम है, वो भी गलत चीज का था। हालेलुया। तो याद रखो, परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज में से निकाला, इसीलिए जब वचन कहता है जब निकालते एफएससी निकालो, उसके आप पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, 16 आयत जब पढ़ते हैं हम, उसमें ऐसा लिखा है 16 आयत के अंदर, एफएससी निकालो, निकाल दिया सबने? 16 आयत निकाली सबने? निकाली या नहीं निकाली? तो पढ़ो चलो। पढ़ो ऊपर आगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। સમયનો સદુપયોગ કરો કેમ કે દાડા ભૂંડા છે। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बार पढ़ो। સમયનો સદુપયોગ કરો કેમ કે દાડા ભૂંડા છે। और एक बार पढ़ो। સમયનો સદુપયોગ કરો કેમ કે દાડા ભૂંડા છે। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? સમયનો સદુપયોગ समय का यहाँ पे लिखा है, हिंदी में जब मैं पढ़ता हूँ तो हिंदी में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है हिंदी में? अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि क्या बुरे हैं? दिन बुरे हैं। दिन अच्छे नहीं है, लेकिन दिन क्या है? बुरे हैं। वो बुरे हैं। बैठ जाओ अपनी जगह पे। क्योंकि दिन बुरे हैं तो उस बात को हमें समझना है। दिन अच्छे नहीं है, दिन अच्छे नहीं है। आप ऐसा सोचते हो दिन अच्छे हैं? हालेलुया, हाँ अच्छे हैं। अभी तक आपके दिन बहुत ही अच्छे हैं, इस बात को समझ लो। अभी तक जो परमेश्वर का नाम जिसके पास जा रहा है ना, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है।
अभी तक जो परमेश्वर में चल रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छे, जैसे आंटी ने कहा ना, दिन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मालूम है? उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने क्या कहा कि मेरा हस्बैंड मुझे जल्दी उठाता है और कहता है तू चर्च में जा, तो अच्छा है उनके लिए, अच्छा है उनके लिए कि उनका हस्बैंड कहता है तू चर्च में जा, उठाता है उनको। हालेलुया। बुरे हैं वो लोग, बुरे हैं दिन उनके कि जिनके माँ बाप उनको कभी कहते ही नहीं है चर्च में जाओ। हालेलुया। बुरे हैं उनके लिए दिन कि जो कभी चर्च में ही नहीं जाते, क्योंकि जो चर्च में नहीं जाएंगे तो आत्मा जिएगा नहीं, और आत्मा जिएगा नहीं तो मुर्दे रहेंगे, वो बीमारी में, वो हर एक परिस्थिति के अंदर, वो दुख दर्द पीड़ा के अंदर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा गया है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। किसको? अवसर को। अवसर। कहो एक दूसरे को, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो। कहो दूसरी बार कहो, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो। याद रखो इस बात। अगर आज जो समय आपको मिला है, आज आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए, बहुत से लोग हैं जो आज घर के अंदर सो रहे होंगे, बहुत से लोग। गए संडे जब हमने कहा था, अब गए संडे मीटिंग चल रहा था और मीटिंग चर्च चला, चर्च पूरा हुआ, चर्च पूरा होने के बाद एक फोन आया कि एक लड़का ऑफ हो चुका। क्यों हो चुका? क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने अवसर को पकड़ा नहीं था। हमने कहा था कि हम गुरुवार को गए थे उनके घर पे और जाके उनको कहा था संगति में आओ, उन्होंने उस अवसर को नहीं पकड़ा। अवसर चला गया, समय चला गया और पीड़ा का समय आ गया, वो लड़का मर गया। हकीकत है ये बात, हकीकत है। आप क्या समझते हो? आज आपके पास समय है, अभी ये लड़की के पास समय है, उसके बाप के पास समय है कि वो चाहे उस लड़की को परमेश्वर की बातें सिखा सकता है, परमेश्वर के अंदर उसको चला सकता है, परमेश्वर के अंदर उसको बढ़ा सकता है, लेकिन ये समय निकल जाने के बाद वो बाप भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब लड़का गलत रास्तों पे चले जाएंगे, याद रखना इस बात। आज हम ऐसा सोचते हैं कि आज पड़ोसी वाले क्या कहेंगे कि हमारे बच्चों को हम चर्च में लेके जाएंगे, आज पड़ोसी वाले क्या कहेंगे, हमारे बच्चों को ऐसी बातें सिखाएंगे, हम लोगों का सोचते हैं। लेकिन जिस दिन वही बच्चे गलत काम करेंगे ना, तब वही आज पड़ोस वाले आके कहेंगे आपके बच्चे इतने गलत है, कुछ सुधारो तो सही, कुछ बोलो तो सही। लेकिन जो समय था ना, जो समय था सिखाने का उनको, बेटा गलत ये है, बेटा गलत संगति मत कर, बेटा गलत लोगों के पास मत घूम, बेटा गलत लोगों के पास मत बैठ, बेटा गलत मत कर, बेटा तो चर्च में जा, संगति के अंदर जा, पर बाइबल पढ़, प्रार्थना कर। वो अच्छी बातें जो हमें उनको सिखानी थी ना, वो समय को हम क्या कर चुके? चुप गए, छोड़ दिया उस समय। क्यों छोड़ दिया? बच्चा भी छोटा है। हालेलुया। बड़ा होगा ना, फिर हम उसको सिखाएंगे, वो अपने आप सीख जाएगा, वो अपने आप चलते हो जाएगा, वो अपने आप बाइबल स्कूल पढ़ने वाला हो जाएगा, वो अपने आप चर्च में जाने वाला हो जाएगा। नहीं, वो समय चला गया। अब जब तुम उनको सिखाओगे ना, वो आपको गाली बोलेंगे, अब वो आप पे हाथ उठाएंगे। सही में बताता हूं, इस बात को याद रखना। बहकाओं में मत रहना कि जो समय परमेश्वर ने आपको दिया ना, आपने उस समय को नहीं समझा और आपने उस समय को छोड़ दिया। हालेलुया। आपको समय मिलता है बच्चों को परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ाने का। याद रखो, माँ बाप को समय मिलता है। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कभी। सही में बताता हूं मैं। आज अच्छा है कि हम जानते हैं, हम सिखाते, हम कहते हैं कि बच्चों को चर्च में लेके आओ, उसको परमेश्वर शिक्षा दो, उसको संदेश में भेजो। हम क्यों कहते मालूम? हम जानते हैं आज माँ बाप करेंगे तो बच्चे कल बड़े होकर वही काम करेंगे। इसलिए हम सिखाते हैं, इसलिए क्या कपड़े पहनना है, क्या नहीं पहनना है, वो सिखाते। अगर माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? क्योंकि समय तो उसी के पास है ना, समय तो माँ बाप के पास है बच्चों को सिखाने का। स्कूल में जाते हैं, टीचर बच्चों को सिखाते, समय उनके पास है, जो सिखाना है वो सिखाते हो। टीचर का काम है बच्चों को सिखाना,
समय उनके पास है। आज ये बच्चा मेरे पास आ रहा है, मुझे उसको जो सिखाना है परमेश्वर दिनों उसको सिखाओ, जो भी सिखाना है उसको सिखाओ दे। आज समय कल आया या नहीं आया किसको मालूम, किसको मालूम। और इसीलिए समय को बहुमूल्य समझो, समझ लो समय को, क्या करो बहुत मूल्य। वो तक है, वो समय है। जैसे मेरे पास 2004 में वो तक आई, वो तो मैंने उसको पकड़ ही लिया, मैंने उसको छोड़ा नहीं छोड़ा। मैं जब भी मुझे कुछ भी काम मिलता था उस काम को मैं पकड़ ही लेता था और उस काम को मैं विश्वास से करता था, उस काम को छोड़ता नहीं था। वो तक को झपक लेना। मैंने कई बार आपको बताया है, हालेलुया, मैंने कई बार आपको बताया कि जब हम संगत में जाते थे, जब हम मीटिंग में जाते थे और हमें लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा करना है वैसा करना है, हम खुद करते थे, हम लोगों को नहीं कहते थे कि आप ऐसा करो वैसा करो, हमें करना उस समय को पकड़ कर हम उस चीज को करते थे। याद रखो इस बात को, मुझे करना है ना, परमेश्वर मुझे समय दिया है, परमेश्वर मुझे चाहत दिया है करने के लिए, मैं क्यों ना करूं। हम उस चीज को करते हैं। खाना खिलाना है हम खिलाते थे, नाश्ता करवाना है हम करवाते थे। आज मेरा समय है करवाने का, परमेश्वर ने मुझे दिया है। हम ऐसा नहीं कहते थे आप पैसे निकालो और हम ये करते, नहीं, हमने कभी ऐसी बात नहीं की। सही में बताता हूं, मुझे करना है मैं कर दूं, मैं क्यों लोगों को बोलूं, मैं क्यों बोलूं। लेकिन जब सिखाना हुआ, अब समय है सिखाने का, अब मैं सिखाता हूं, ये प्रोग्राम है, अब सबको देना ही पड़ेगा, अब ये कर आपको करना ही पड़ेगा, अब सीखना है ना, तो हम तो वो सीख चुके ना, अब आपकी बारी है सीखने की। क्योंकि उस समय को आप नहीं समझ सकते हो, उस समय को आप नहीं समझ सकते। हालेलुया, हालेलुया। उस बात को समझो। समय आज ही आपके पास, इस समय को अगर आपने छोड़ दिया, याद रखो इस तप को छोड़ दिया, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे पास बहुत बार समय ऐसा आता है कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं ना, वो कोई परिस्थिति उनकी ऐसी होती है, कोई बीमार होते हैं, कोई तकलीफ होता है, हम जाते हैं, बर्थडे होती है हम जाते हैं, कुछ नई चीज लेके आए हम जाते हैं। मैं जब भी मेरे पास कोई भी चीज आती है, हम लोग उसके लिए पहले प्रार्थना करते हैं, ऐसे लाके उसको घर में नहीं रख देते, पहले प्रार्थना करते हैं। हम ऐसे उसको यूज कभी नहीं करते। जब गाड़ी लेने की बात आई, जब गाड़ी तो प्रार्थना करने के लिए पास्टर को बोला, पास्टर से आए थे वो, हमारे पास होते हैं हर जगह पे, वो आए। मैंने कहा जब तक प्रार्थना ना हो ना, तब तक तो मैं गाड़ी के अंदर बैठू भी नहीं और उसको छू भी नहीं। जब तक मैं परमेश्वर के हाथ में ना सौंपू, जब तक उसकी में प्रार्थना ना हो, तब तक मैं उसको छू भी नहीं। मैं सही में कहता हूं, मेरी हर एक चीज जो मेरे पास है ना, पहले उस पर प्रार्थना की गई और उसको फिर हमने यूज किया है। आएगा, प्रार्थना करेगा, उसके बाद हम यूज करेंगे। आज तक ना मेरी कोई चीज बिगड़ी है, कोई चीज नहीं बिगड़ी। रीजन क्या है, वो समय ना, पहला समय परमेश्वर को देने का समय है ना, उस तब को पकड़ना था। अब मैं किसी घर पे गया और घर के कोई बीमार है, किसी बर्थडे, वो समय है, चलो कोई ना उसके लिए प्रार्थना तो करवा दो, उस समय को तब को झपक तो लो। जब हम पीड़ित के काम में पढ़ते, उसमें लिखा है पीड़ित निकालो और उसका 17 अध्याय निकालो, उसमें 22 से 23 हम पढ़ेंगे पीड़ित के काम। वहां पौलुस क्या कह रहा है वो देखो, पीड़ित के काम 17 अध्याय, और उसमें पौलुस कह रहा है यहाँ पे, जब उसको पढ़ते हैं, थैंक यू 22 और 23 आयत में, लेकिन हम थोड़ा ऊपर में 22 आयत में पढ़ते, मैं उसमें पढ़ता हूँ, सुनना। उसमें ऐसा लिखा है, तब पौलुस ने अरिस्तुबुलुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, तो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। हालेलुया,
क्या लिखा है यहाँ पे? जिसको तुम नहीं जानते हो ना, मैं उसका समाचार आज आपको सुनाता हूँ। क्योंकि वहां पे क्या है, पौलुस वहां पे जाता है, वो लोग देख रहे हैं वहां पे बहुत ही ऐसी जगह, क्या बोलते जगह थी, वहां पे बहुत सी मूर्तियां रखी हुई थी। हर एक देवता की मूर्तियां रखी हुई थी वहां पे एथेंस के अंदर। और जब वो मूर्तियां रखी थी और वहां पे ऐसे खाली पॉपुला भी रखा था, खाली भी जगह रखी थी। और लोग क्या करते थे मालूम है? वहां पे जाके उस खाली जगह पे जाके क्या करते हैं? मत्था देखते होंगे, वहां पे कोई फूल चढ़ाता होगा, कोई अगरबत्ती चढ़ाता होगा, कोई कुछ भी करता होगा। अब पौलुस वहां पे देख रहा है। कौन देख रहा है? पौलुस देख रहा है। अब पौलुस देख रहा है और पौलुस कह रहा है वहां पे, क्या कह रहा है कि जिसको तुम जानते नहीं हो उसकी भी आपको क्या करवा रहा हूं? आज पहचान करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? पहचान करवा रहा हूं। समझो, मैं आज उसकी पहचान करवा रहा हूं। हमने कभी किसी की पहचान परमेश्वर से करवाई जब हमें समय मिला तब। करवाई। हम किसी के घर पे गए, कोई दर्द के अंदर, कोई तकलीफ के अंदर बैठा हुआ है, क्या हमने कभी उसकी पहचान परमेश्वर से करवाई कि ऐसा एक परमेश्वर है जिसने आपके बीमारी के लिए उसने मार खाया है, वो क्रूस पे मरा, वो तुम्हारा लहू बहाया, और वो परमेश्वर के मार खाने से आपको चंगाई मिली है। आपको डॉक्टर ने कुछ भी कहा है, लेकिन आप परमेश्वर विश्वास करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे, आपकी हर बीमारी चली जाएगी। क्या हमने कभी परमेश्वर की पहचान किसी के पास करवाई है? हम हमारे बहुत से फ्रेंड के पास घूमते हैं, हमारे बहुत से संबंधी हैं, हम जानते हैं उन संबंधियों के घर पे कैसी कैसी परिस्थिति है, हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन क्या हम जाके कभी उनको कहा है कि ऐसा परमेश्वर है, आप उनके पास आओ, आपको उद्धार मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि जिसको तुम नहीं जानते ना, उसका शुभ समाचार मैं सुनाता हूं। गुजरात में लिखा है, पढ़ता हूं। કેમ કે માર્ગે ચાલતા ચાલતા જે દેવી દેવતાઓને તમે ભજો છો તેઓને હું જાણતો હતો, ત્યારે મેં એક વેદી પણ જોઈ, જેના પર અજાણ્યા દેવના માનમાં એવો એક લેખ કોતરેલો હતો, માટે જેને તમે જાણ્યા વિના ભજો છો તેને હું તમારી આગળ પ્રગટ કરું છું। अब एक समय है प्रकट करने का। अब क्या है? समय है। पौलुस वहां पे हर जगह देखता है, सब कुछ देखता है। और लोग उसको कहते हैं, ऊपर पढ़ते कहता है कि कोई दूसरा धर्म लेके आया, कोई दूसरा परमेश्वर लेके आया है, और उसके क्या करता है? बहुतायत कर रहा है, उसको मान दिला, उसको महिमा दिला रहा है, यहाँ पे एक कर रहा है, वो कर रहा है। वो लोग बहुत ही बातें बना रहे थे, वहां पे कर रहे थे। और तब पौलुस कह रहा है, तब क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है अब तक मिल गई है उसे। क्या मिल गई है? तक मिल गई। तब को यूज कर लो ना, तब को यूज करो, तब को पकड़ लो। हम भी बहुत सी जगह जाते हैं, हमें तक बहुत मिलता है। कौन यहाँ पे बात करे? कौन बात करे? मुझे क्या है? हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके लिए नहीं गया क्यों गलत है। आज संडे है, हम परमेश्वर के हजूर को छोड़कर कभी नहीं जाते। कितना भी इंपॉर्टेंट काम है हम उसको छोड़ देते हैं। याद रखो। दूसरी बात है, अगर मुझे वहां पे जाना भी है, अगर मैं वहां पे जाता तो भी मुझे एक चीज मालूम है, मैं वहां पे जाता सब लोग निराश हो जाते। क्यों निराश होते मालूम है? क्योंकि मेरा मुंह कभी बंद नहीं रहता है, कभी बंद नहीं रहता। वो गलत है, यानी कि गलत ही है। कोई मर गया है तो वहां पे भी मुंह बंद नहीं रहता है, और कोई जिंदा है वहां पे मुंह बंद नहीं रहता है। मर गया तो क्यों मर गया वो पूरा उसको बताना पड़ता है। परमेश्वर को नहीं जाना, वो मर गया, उसको बोला ना परमेश्वर नहीं आया, नाश हो गया उसका, बोलना पड़ता है। लोगों को गलत लगता है। हमारे पास तुरंत जल्दी से कोई बातचीत करने नहीं आता है। क्यों मालूम है? अगर आ गया ना एक ही समय हमारे पास, उसको शुभ समाचार सुना दो, परमेश्वर की बातें बताओ बस। वो जानता है इसके पास जाएंगे, ये एक ही लत लगा के बैठ जाएगा और एक ही चीज को बोला करेगा और कुछ नहीं। वो देखेगा नहीं कि कौन सी परिस्थिति है, कौन सी जगह पे हम खड़े, कुछ नहीं। उसके एक ही चीज को परमेश्वर को प्रकट करना है, सच क्या है उसको सिखाना है।
आज समय आपके पास है, उसको पकड़ लो, मत छोड़ो। आप इस समय को छोड़ दो, मैं सही में कहता हूं, फिर कभी आपके जीवन में समय नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मेरा सुधरने का समय था, पर मैंने पकड़ लिया। मुझे किसी ने, मैं सही में कहता हूं, आज तक मुझे किसी 2 पास्टर थे हमारे, ये मत करो, नहीं बताया। मैं आपको चिल्ला के कहता हूं, ये मत करो, ऐसा करो, चिल्ला के कहता हूं। चर्च में आना है कि आना परमानेंट आना ही है, कुछ भी हो जाए। पेट में दर्द है तो भी चर्च में आओ, और कोई मर जाए तो भी चर्च में आओ, कोई कुछ भी है तो भी चर्च में आओ। चर्च के समय चर्च में होना जरूरी है, बाकी सब काम बाद में। मैं सही में एक बात बताऊंगा आपको, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ क्या है उसको छोड़ो। आपके लिए जिसने तकलीफ को उठाया है, जिसने पीड़ा को उठाया है, उसको याद रखो। उस समय को बहुमूल्य समझो, और उस समय के पास, परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर आपको बचा लेगा, संभाल लेगा। लेकिन हम उस समय को छोड़ देते हैं। जब हम पढ़ते हैं, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे। अब निकालो, राजा की पुस्तक निकालेंगे, पहला राजा, दूसरा राजा, हम निकालेंगे, और उसका हम 5 अध्याय निकालेंगे, और उसकी 1 आयत पढ़ो, 3 आयत पढ़ो। તેણે પોતાની શેઠાણીને કહ્યું કે ઈશ્વર કરીને મારો મુરબ્બી સમૃદ્ધમાંના પ્રબોધક પાસે જાય તો કેવું સારું। हालेलुया, क्या लिखा है यहाँ पे? પોતાની શેઠાણીને કહ્યું કે ઈશ્વર કરે ને મારો મુરબ્બી સમૃદ્ધમાં પ્રબોધક પાસે જાય તો કેવું સારું, કેમ કે ત્યારે તો તે તેનો કોળ મટાડે। हालेलुया। यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि एक छोटी सी लड़की थी। इतनी लड़की होगी, छोटी सी, सेविका नहीं होगी वो, एक छोटी लड़की थी जिसके माँ बाप ने उसको पहले से सिखाया था। क्या सिखाया था मालूम है? बेटा डरना मत, कहीं पे भी चली जाए तो अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी के भी सामने झुकना नहीं। उसकी माँ, उसके बाप, शायद उस समय कलीसिया होगी नहीं होगी, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूँ। हालेलुया। होगी भी, शायद नहीं भी होगी, लेकिन अगर होगी ना तो मैं सही में इस लड़की को उसके माँ बाप हर संडे कलीसिया में लेके जाते होंगे। तभी तो ये लड़की दूसरे के घर पे जाके बिंदास बोल सकती है, गुलाम है। कौन है? गुलाम है। लेकिन वो क्या कहती है यहाँ पे, जब हम पढ़ते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, सुनो 3 आयत। उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। कहाँ पे होता? भविष्यवक्ता के पास होता, यहाँ पे नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। सोचो, आप कौन है? आप क्या सही में आप दूसरे के घर पे जाके ऐसा कह सकते हो, या दूसरे के देश में जाके, या दूसरे कोई आपको कैदी पकड़ बना के लेके गया, क्या उसको आप कह सकते हो? क्या आप दूसरे राजा के सामने दूसरे राजा का पक्ष लोगे तो राजा आपको मार देगा। इस बात को समझो। हम कभी खड़े हो गए, नहीं हम अभी परमेश्वर का नाम नहीं ले सकते। क्यों? अभी हमारा समय, अच्छा समय नहीं है। अभी यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, हम कैसे नाम ले परमेश्वर? हम कैसे बताए? डर जाते। क्या करते? डर जाते। एक गुलाम थी, और एक गुलाम थी, लेकिन जब उसके सामने बात आई, क्या बात आई? कि उसका जो स्वामी है, जो उसका सेठ है, वो कहता है कोड़ी है। वो चुप नहीं, उसने उस समय को तुरंत ही पकड़ लिया, एनी टाइम पकड़ लिया, उसने उस समय को पकड़ लिया। और पकड़ के क्या कहती है? उसने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी सावन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देगा। अगर मेरा स्वामी भविष्यवक्ता के पास होता तो उसे चंगा कर देता। हालेलुया। याद रखो इस बात को। जब भी समय मिलता है उसका यूज कर दो। कहीं पे भी चले जाओ, डरो मत डरो। वो समय आपको परमेश्वर देता है उसकी बात बताने के लिए।
आप ऐसे कहीं पे नहीं चले जाते हो, परमेश्वर आपको लेके गया है, वहां पे आपको तक मिलती है परमेश्वर का वचन बताने के लिए। उस बात को समझो, दया दिखाने के लिए, खाना खिलाने के लिए आपको समय मिलता है और तक मिलती है, उसको झपट लो तुरंत ही। दया दिखाने के लिए तक मिलती है, उसको झपट लो, झपट लो, उसको छोड़ो मत। हम छोड़ देते, लोग छोड़ देते, नहीं झपटते। मुझे क्या है, वो भूखा है तो मेरे लिए थोड़ी भूखा है, उसको खाना तो खिलाएंगे, मुझे क्या है, मैं तो अपना पेट भर लूं ना, मुझे क्या है। वो तक है, वो समय आप अच्छा कर दो, उसको खाना खिला दो, वो खाना खाएगा परमेश्वर से, आपके लिए दुआ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, समझिए, है ना? नीचे जाओ। हालेलुया, समझो बात को। આગળ જે પાછળ કોઈ નથી, ક્યાં છે? આગળ છે। हालेलुया, वचन को समझो, क्योंकि शैतान आएगा और वचन को, जब अच्छा वचन होता है ना, वो डिस्टर्ब करके सब कुछ छोड़ के चला जाता है। क्यों जाते हैं मालूम है? हम जाते रहे चर्च के अंदर, हम बैठते रहे, हम एक चीज को बहुत अच्छी तरह समझ गए थे, हम लोग बहुत अच्छी तरह। शैतान वचन चोरने के लिए आता है, लेकिन मेरी दृष्टि से पास्टर की दृष्टि मिलनी चाहिए, मेरे कान उसके आवाज के ऊपर होने चाहिए। चाहे बाजू में बैठ के कोई लड़का रो रहा था, हम उस पर ध्यान कभी नहीं लगाते, वो रोता है वो खुद भी उसको करने देते थे, क्योंकि हम जानते थे ये समय है, ये समय में ये सब होगा। आज समय आपके पास, अगर आपने इस समय को नहीं पकड़ा, याद रखो पीछे के दिन बहुत बुरे हैं, पीछे के दिन बहुत बुरे। अगर इस लड़की के पास समय था, इस लड़की ने समय को नहीं पकड़ा होता ना, सही में कहता वो गुलाम बन के रहे, जो गुलाम नहीं होगी, फिर उसको उसके सेठ ने बहुत ऐसी इज्जत दिया होगा, उसको मान दिया होगा, उसको मान दिया होगा, क्योंकि उस लड़की के लिए वो कोड़ी में से शुद्ध हो गया, चंगा हो गया। हमने तो केवल यहाँ पे सुना है कि बंदी ग्रूप बनाई हुई लड़की थी, लेकिन जब उसका मालिक चंगा हो गया तो उसने क्या उस लड़की को इज्जत नहीं दी होगी? क्या उसको मान सम्मान नहीं दिया होगा? क्या सोचो, उसको गुलाम बना के नहीं रखा होगा, नहीं रखा होगा, लेकिन पूरे घर पे उसको भी अधिकारी बना के रखा होगा, क्योंकि उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं था कि जिसने समय को पकड़ लिया तुरंत और शब्दों को बोल दिया। उसको डर नहीं लगा, उसको भय नहीं लगा कि मैं उसको मार डालूंगा, क्योंकि वो कह रही है कि मैं समुद्र में जाऊं, वहां पे चला जाऊं, मैं यहाँ अपना देश को छोड़ के चला जाऊं। उसने बिल्कुल घबराई नहीं, उसने बोल दिया, तुरंत ही बोल दिया कि मेरा स्वामी वहां पे जाए तो कितना अच्छा है, तभी तो उसका कोड़ मिटाएगा ना प्रभु दर। तुरंत बोल दिया। नामान ने भी उस बात को पकड़ लिया। यहाँ पे तो हम बोले ना